اسی طرح ہم خدا کے 7 کلمات میں آگے بڑھتے ہوئے چھٹے کلمے کا آغاز کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے تمام ہوا۔ اور میں مسز نادیہ الیاس کی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس کلمے کے بید ہم بیان کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں اپنے خداوند یسوع المسیح کی نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے صلیبی کلمات میں سے چھٹے کلمے کے لیے مجھے چن لیا۔ حوالہ ہے چھٹے کلمے کا مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ He said it is finished۔ آج پاک مبارک جمعہ کا دن ہے اور ہم سب یہاں پر 7 صلیبی کلمات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے 5 صلیبی کلمات ہم سن چکے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب سے 7 کلمات کہے اور ان کے ہر ایک کلمے کی اور ہر ایک لفظ کی انہوں نے ایک بھاری قیمت ادا کی۔ یسوع مسیح نے صلیب سے کوئی لمبے پیغامات نہیں دیے، بلکہ چند مختصر پرمعنی باتیں کی جو ہم سب کے لیے باعث برکت ہیں۔ یسوع نے صلیب سے صلیبی کلمات ان الفاظ میں ان وقت میں کہے جب ان کا صلیب سے سانس لینا بھی مشکل تھا، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے ان لفظوں کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کی۔ اس لیے یہ کلمات ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے آج ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے 7 کا لفظ جو ہے وہ روحانی کاملیت کا عدد ہے، اس لیے کہ یہ کلمات خدا کے کامل کردار یعنی اس کے کامل محبت کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو اس نے دنیا کے لیے کی۔ چھٹا کلمہ، یہ کلمہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے اور جس کا مطلب ہے تمام ہوا۔ کلمے کا وقت 3 بجے کا ہے اور اب اندھیرا ختم ہونے کو ہے، اور یہ کلمہ جو ہے تمام ہوا، یہ فتح مندی کا نعرہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے کہا تمام ہوا، فتح کا نعرہ ہے۔ ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے صلیب کے اوپر سے سارے کام اپنے مکمل کیے۔ یہ کلمہ چھٹا کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ کلمے کا عدد 6 ہے، اور 6 جو ہے وہ انسان کا عدد ہے، کیونکہ چھٹے دن خدا نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اور 7ویں کلمے میں یوں فرماتا ہے کہ میں اپنی روح اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں آج آپ کلیسیا کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں، اور سوال یہ ہے کہ یہ آواز تمام ہوا بشریت کی ہے یا الوہیت کی ہے؟ یہ آواز بشریت کی ہے تو محدود ہے، یہ آواز الوہیت کی ہے تو لامحدود ہے، یہ آواز کامل خدا کی ہے، یہ آواز کامل خدا کی ہے۔ بشریت ہمیں صلیب پر برکت نظر آتی ہے، یہ آپ کا اور میرا ایمانویل یسوع ہے، اس لیے خدا کا پلوٹا ہے، بیٹا ہے جو مسیح شدہ ہے اور مسیح دینے والا بھی ہے، اور ایک وقت میں آسمان پر بھی ہے اور ایک وقت میں زمین پر بھی ہے۔ کامل خدا ہونے کی نسبت سے اپنے لب مبارک سے یوں فرماتا ہے، یہ صدائے کاملیت ہے، اس آواز کے اندر سلامتی ہے، اس آواز کے اندر مخلصی ہے، اس آواز کے اندر نجات ہے۔ اسی لیے اس کامل خدا نے آج شیطان کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود کر دیا، اور جب اس نے اس پیشن گوئی کو پورا کیا پیدائش 3:15 کی، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ خداوند کی اس پیشن گوئی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، زوردار تالیاں بجائیں تاکہ خداوند کی اس فتح مندی کا شکر ادا کریں کہ اس نے کہا صلیب سے تمام ہوا۔ اس فتح مندی کے نعرے کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی خدمت، اپنے تمام فرائض کو پورا کیا، سر انجام دیا۔ اس کا اعلان ہے کہ پورا ہوا، تمام ہوا، زندگی کی کامیاب شاندار
कामयाबी है, तमाम हुआ। ऐलान है खुशखबरी का, सलीब का, कि इसने कितने बड़े काम को, कितने बड़े मुहिम को, बड़े मरहले को, काम को सर अंजाम दिया। जब हम बागे गतसमनी का जिक्र देखते हैं, सुनते हैं, तो बनी नौ इंसान के गज़ब वो अपने ऊपर उठा ले जाता है। तमाम हुआ। देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठाए लिए जाता है। एक बार फिर हम जब कलवरी पर नज़र करते हैं तो कलवरी वो जगह है जहाँ पर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पिछले 2 कलमात में हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और मैं प्यासा हूँ। अब इस कलमे को बोलने से पहले वो सिरका पी रहे थे, रोमी सिपाही उनको सिरका पी रहे थे, और तमाम हजूम उनकी तरफ मुतवज्जा था, उनको देख रहा था। हर एक शख्स अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ये दोनों कलमात यीशु मसीह के दुखों को, रूहानी जिस्मानी दुखों को बयान करते हैं। लेकिन इन दुखों के बाद उन्होंने कहा तमाम हुआ। वो जिसे कुचला गया, वो जिसे मारा गया, वो जिसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, वो जिसके हाथों पे कील ठोंके गए, वो जिसे कोड़े मारे गए, अब वो फातेह है। इसलिए उसके दुखों का वक्त ख़त्म हुआ, तमाम हुआ। उनके काम तमाम हुए, उनका मिशन तमाम हुआ, निजात का काम तमाम हुआ, अबलीस से जंग तमाम हुई। आसमान के दरवाजे खुल गए ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उन दरवाज़ों में दाखिल हो सके। और लिखा है तमाम हुआ। और ये कहने के बाद यीशु ने अपना सर झुका दिया और अपनी रूह खुदा के हाथों में दे दी। फिदिया देने की बहुत बड़ी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने अदा की। यीशु ने हमारे लिए अपना बेश बहा कीमती खून बहा दिया ताकि हम उस बरकतों को हासिल करें जो हमें अभी और अब्दी ज़िंदगी में हासिल होती है। हमारे गुनाहों की बहुत बड़ी भारी कीमत हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर दी। इसलिए निजात के छठे कलमे की बरकत जो हमें सलीब से वसीला से हासिल होती है वो गुनाहों से रिहाई है। ये काम सलीब पर मुकम्मल हुआ, सलीब पर तमाम हुआ। यहाँ पर यीशु इस मसले को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं, तमाम कर देते हैं। खुदा का शुक्र हो कि यीशु ने अपना सलीब पर तमाम काम पूरा कर दिया और हमारी निजात के लिए पूरी अपनी कीमत अदा कर दी। ये यीशु के इस कलमे की पेशन गोई कई 100 साल पहले हो चुकी थी। जब हमें ये एहसास होता है कि सलीब पर हमारे लिए क्या हुआ तो हमारे अंदर ईमान बढ़ता है। जब हमारे अंदर ईमान बढ़ता है तो हम उसके दिए गए कफारे को दिल से कबूल करते हैं कि हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए एक भारी कीमत अदा हो चुकी है। इसलिए माफ़ी, शफा और हर एक बात की कीमत अदा हो चुकी है। इसलिए हमारे मसीह मसलूब ने अपनी सलीब पर जब जान दी तो कहा तमाम हुआ। अपना खून वो बहा चुके, अब अपने खौफनाक अंधेरे अब खत्म हो चुके। बनी नौ इंसान की सजा वो अपने ऊपर उठा चुके। सिर्फ अब जिस्मानी मौत बाकी थी जो मसीह के लिए एक मामूली बात थी। और कहते हैं मुझे, और यीशु मसीह ये कहते हैं कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार। और ऐसा इख्तियार दुनिया में और किसी के पास नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही ऐसा इख्तियार रखते हैं। तमाम हुआ, तमाम दुनिया के खून वो अपने ऊपर बहा, कीमती खून उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने बहा दिया, तमाम दुनिया के लिए बहा दिया। तमाम हुआ कलमे का मतलब है तमाम नबूतें, तमाम पेशन गोइयाँ जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी की और मौत की थी वो तमाम पेशन गोइयाँ तमाम हुई, मुकम्मल हुई। उनके दुख तमाम हुए, उनकी पेशन गोइयाँ तमाम हुई, शिफा और निजात का काम तमाम हुआ, ज़मीनी ज़िंदगी तमाम हुई, कामिल ज़िंदगी तमाम हुई, उनका मिशन तमाम हुआ, उनकी नबूतें तमाम हुई। इसलिए ज़िंदा कलाम में पुराने अहदनामे में जितनी पेशन गोइयाँ थी वो तमाम हुई। जब हम देखते हैं यसाया नबी की किताब उसके सहीफे में कि वो हमारी खातर मारा, कूटा और सताया गया, इस तरह यीशु के तमाम दुख पूरे हुए, तमाम नबूवतें पूरी हुई, तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हुई और खुदा का जिंदा सच्चा कलाम साबित हुआ।
शरीयत के तमाम तकाजे पूरे हुए, गुनाहों की माफ़ी का काम मुकम्मल हुआ, मसीह का काम ख़त्म हुआ, बाप की मर्जी पूरी हुई, ज़मीन पर मसीह का काम तमाम हुआ, इब्लीस की शिकस्त तमाम हुई, क्योंकि फिर मौत पर उसका मौत पर फतह का काम मुकम्मल हुआ। खुदा और इंसान की सुलह का काम मुकम्मल हुआ। जब मसीह सलीब पर जान दे रहे थे तो हजूम उनके ऊपर बेबसी पर मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सलीब के वसीला से शैतान की तबाही और मसीह की फतह है। इसने मौत के वसीला से उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दिया। मौत पर फतह का काम मुकम्मल हुआ। मेरे अजीजों, आज हम जब यहाँ पे बैठे हैं हमारे सीखने के लिए खुदा यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात किए। इस बात को गौर से ध्यान से सुने कि इंसान इस जमीन पर 2 ही दुश्मन हैं। इस जमीन पर इंसान के 2 दुश्मन हैं, एक मौत और दूसरा शैतान। यीशु अल मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीला से शैतान को तबाह कर दिया और इसके साथ ही मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर मौत को भी शिकस्त दे दी। आज तक दुनिया का हर एक शख्स मौत से शिकस्त खाता रहा, लेकिन हमारे मुनज्जी दो जहां मसीह ने भी मौत को शिकस्त दे दी। अब वो जिंदा है और फिर नहीं मरने का, क्योंकि मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। रोमियो की किताब उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। इसलिए मेरे अजीजों, हमने देखा कि मौत का फिर उसके ऊपर इख्तियार नहीं होने का। जब मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा जो कि बहुत बड़ा था ऊपर से नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गया। और लूका की इंजील हमें बताती है उसका 23 बाब उसकी 45 आयत में, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। ये पर्दा मसीह की बशरियत को जाहिर करता है। पर्दे का फटना मसीह की मौत को जाहिर करता है। हैकल का ये पर्दा पाक मकान को पाक तरीन मकान से अलग करता था। इस राह में ये राह बिल्कुल बंद थी, इसमें कोई नहीं जा सकता था। साल में एक दफा सरदार काहिन इसमें बगैर खून के नहीं जाते थे ताकि अपनी उम्मत के वास्ते कफारा दे, लेकिन मसीह की मौत ने इसमें जाने का रास्ता खोल दिया। जब मसीह की मौत के वक्त ये पर्दा फट गया तो पाक तरीन मकान के अंदर जाने का रास्ता खुल गया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा तक रसाई की नई राह खुल गई। और इब्रानियों 10:19-20 में लिखा है, बस है भाइयों, चुनाचे हम यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में होकर हमारे वास्ते मखसूस की। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमारे लिए वो सब काम कर दिए जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी थी। अजीजों, आज हमें भी गौर करने की जरूरत है कि हमारा क्या मिशन है, हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। क्या हमने अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए कोई मकसद रखा है? क्या हम भी इस जिंदगी का सफर खत्म करते हुए ये कह सकते हैं कि तमाम हुआ? क्या हमारा मिशन तमाम हुआ है? आज ईमानदारों का क्या काम है? आज ईमानदारों के लिए क्या जरूरी है कि बस तुम जाओ और जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुमको हुक्म देता हूँ, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मुबारक है वो शख्स जो इस दुनिया का सफर खत्म करने से पहले ये कह सकता है कि मैंने अपना मिशन पूरा किया, क्योंकि जाने से पहले वो ये कहे कि मैंने अपना मिशन पूरा किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।